Hello, good evening, guys. Welcome to Full Stack Binted training program. Is my voice audible to everyone? Just confirm in the chat, please. Okay, screen is visible. Okay, so everyone, please open Sublime Text and create a new folder beside like the same folder, and there we have created day 01. So today we are going to continue our session for the second day. So just create a new folder with day 02. So for that purpose, just go to open folder and you can opt out for like day 01. Then we are creating a new folder and renaming it to day 02. Okay, so we are going to create like a separate folder for each and every day, so that we will be having like separate collection of all the things which we will be covering up in the next 180 days. Okay, so create a new folder and open in Sublime Text. We are going to continue our session. So for that part, just create a new file and rename that file by like Ctrl+S and make the file name as index.html. आप लोग इतना करो एंड देन मुझे टेक्स्ट बैक करो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. Just create a new folder day 02 and create a new file index.html and text in the chat. So today we are going to like continue our journey in HTML5, and we are going to cover up these 8 topics for today. Like there will be classes and IDs, then we will be moving to the topic data attributes, after that linking and resources, then including JavaScript code in HTML, then we will move for like using HTML with CSS. After that we will be having skills about images, like how we can use images in HTML, then image maps. At last we will be having like conversation over input control elements. So these are the things which we are going to cover up today. Okay, so let's start with the first topic, that is classes and ID. ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं और इसका क्या मतलब है, क्यों यूज करते हैं, इससे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो क्लासेस एंड आईडी जो है वो एट्रीब्यूट है, वो कोई एलिमेंट या टैग नहीं है. ठीक है, एलिमेंट या टैग किसको बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं उसको जिससे आपका लाइक क्लोजिंग और ओपनिंग वाला चीज यूज करते हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, पी टैग, देन बी टैग फॉर बोल्ड, मेकिंग बोल्ड द टेक्स्ट, फिर था आपका इमेज img टैग. ठीक है, स्क्रीन नहीं विजिबल है? जस्ट कंफर्म वंस प्लीज, screen, my screen is visible or not? Any other person you can like confirm me like screen is visible or not? Yes, so I guess Sunil, you are having some issues, you can like uh, join again. Then why you have mentioned like a screen is not visible? Like Sunil, you have written this text now. ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं आगे. तो बात यह है ना कि क्लासेस और आईडी का लाइक यूज तब आता है जब हम रेफरेंस बनाते हैं. ठीक है, जैसे आप स्टाइलिंग लगाओगे, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी टैग पे, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए होगा. जैसे आपको मैं लाइक आपकी कॉलोनी होगी, हाउसिंग सोसाइटी होगी, या फिर जहाँ भी आप रह रहे होगे, ठीक है, आपके मोहल्ले में या कुछ भी. ठीक है, तो उस पार्ट पे क्या होगा कि लाइक आपको एक रेफरेंस चाहिए होगा जिससे ये पता चल सके कि कौन सा घर का क्या है, लाइक हाउस नंबर. ठीक है, तो उसी तरीके से आईडी और क्लास करके जो है ये हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट जस्ट रेफरेंस के लिए, कि जब हमें CSS अप्लाई करना होगा या जावास्क्रिप्ट जब हम अप्लाई करेंगे, तो एक पर्टिकुलर चीज चाहिए होगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये किस चीज का एलिमेंट है या कौन सा एलिमेंट का आपको टारगेट करना है. ये सारी चीजों के लिए आपको जरूरत पे आएगा क्लास और आईडी.
अब कंडीशन इसका ये है कि क्लास और आईडी में मेन चीज जो आएगा आपका वो आएगा कि क्लास जो है आप मल्टीपल एलिमेंट्स का सेम रख सकते हो, बट आईडी आपका यूनिक होगा। तो आपका आईडी का क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो पहले देखते हैं, ठीक है। तो HTML वर्जन 5 में या उससे ग्रेटर वाले वर्जन में आपको क्या है कि आईडी जो आप पास करते हो वो हमेशा यूनिक होना चाहिए पूरे डॉक्यूमेंट में। मीन्स आप जिस फाइल पे काम कर रहे हो ना, सपोज आप index.html में हो, तो index.html में अगर सपोज आपने किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ का आईडी रखा समथिंग लाइक टाइटल, ठीक है। अब आपने टाइटल आईडी उस चीज को अलॉट कर दिया, तो आप दूसरे किसी भी एलिमेंट को, आइदर वो पैराग्राफ हो या हेडिंग हो या कोई भी एलिमेंट हो, आप वो चीज दूसरे को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। दूसरा है कि ये लाइक इसके अंदर आप कोई स्पेस यूज नहीं कर सकते। जैसे क्लास में क्या होता है कि आप मल्टीपल क्लास अलॉट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को, किसी भी आईडी को, जस्ट एक सेपरेटेड बाई स्पेस होता है, ठीक है। एक स्पेस डालते हो फिर दूसरा क्लास नेम आप पुट करते हो। तो वो सारी चीजें आईडी में काम नहीं करती है। आईडी सिर्फ लाइक कंसेक्यूटिव कैरेक्टर का होगा, यूनिक होगा। और तीसरा चीज ये है कि कम से कम एक कैरेक्टर तो होना चाहिए आईडी में, ठीक है। और उसमें वैलिड जो आईडीज होते हैं उसके लाइक एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। जैसे आप नंबर से स्टार्ट कर सकते हो वो भी चलेगा, ये सारे सिंबल्स यूज कर सकते हो वो भी चलेगा, कुछ भी आप आईडी में रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स है जो स्क्रीन पे आपके विजिबल हैं। तो इस तरीके का आईडी आप रख सकते हो, बस कंडीशन ये रहेगा कि वो पूरे डॉक्यूमेंट में यूनिक होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्लास की बारी आती है। तो क्लास में क्या है ना कि ये आईडी की तरह ही सेम है, रेफरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट नेमिंग आपका लाइक उसी तरीके का सिमिलर है। बस कहानी ये है ना कि आप इसमें मल्टीपल क्लास अलॉट कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को या फिर एक टैग को, ठीक है। जैसे कोई भी क्लास में आप जाओगे तो वहाँ पे लाइक सिमिलरली आप डाल सकते हो कि हाँ ठीक है, क्लास नेम में आप सेम चीज़ें डाल सकते हो। जैसे जो आईडी में ऑलरेडी यूज हुआ पड़ा है उसको भी इनफैक्ट आप डाल सकते हो क्लास में, वो भी चलेगा, ठीक है। बट आईडी में वो चीज़ क्या होता है कि आपको लाइक नहीं चलेगा कि आप दो पर्टिकुलर टैग का एक ही आईडी नहीं रख सकते। बट जो आईडी में आप यूज कर चुके हो कैरेक्टर, वो आप टेक्स्ट में लाइक क्लास में आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ कि आईडी में रिजल्ट्स आपने यूज करा कहीं भी, तो आप उसी चीज़ का, उसी टैग का आप क्लास नेम रिजल्ट्स रख सकते हो, या कोई और एलिमेंट या टैग का आप क्लास नेम रिजल्ट्स रख सकते हो। बस डिफरेंस इतना है कि आईडी जो है पूरे डॉक्यूमेंट में आप एक बार यूज करोगे उस चीज़ को, नेमिंग को, और क्लास का आप कितना भी बार आपकी मर्जी जितने भी चाहो उसमें यूज कर सकते हो। मेनली क्लास को क्या करते हैं ना कि ये हम तब यूज करते हैं जब बहुत सारे एक ही तरीके का चीज होता है ना, जैसे टाइटल है पूरे वेबसाइट पे, ठीक है। एक वेबसाइट आप बना रहे हो, उस पर एक टाइटल्स बहुत सारे जगह पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब कहानी ये है कि आप बार बार CSS लिखने नहीं बैठोगे ना, बार बार CSS लिखोगे तो रिपीटेड काम कर रहे हो, आपका साइट भी स्लो होगा। तो आप क्या करते हो कि जो कॉमन चीजें है ना उसको क्या करते हैं क्लास के थ्रू लाइक उसको स्टाइल कर देते हैं, और वही क्लास नेम आप वो सारे टाइटल में आप डाल दोगे डायरेक्टली। उससे क्या होगा कि आपने एक जगह कोड लिखा CSS का और वो सारा CSS जहां जहां रिक्वायर्ड था वहां वहां अप्लाई हो गया, राइट। तो ग्रुपिंग वाला चीज जब आएगा ना कि लाइक कॉमन चीजें मिल रही हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे क्लास का। और कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट को टारगेट करना होगा तो हम यूज करेंगे आईडी का। जैसे नॉर्मली कन्वर्सेशन लैंग्वेज में जब भी किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो क्या होता है कि आपको पूरे बैच को, अगर टीचर आपको कोई क्लास में पढ़ा रहे सपोज आपके कॉलेज में, अब उनको कोई टास्क असाइन करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे डायरेक्टली आपके ग्रुप में डाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी आपका कम्युनिकेशन सोर्स है उसमें आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। बट अगर वो टीचर को किसी एक स्टूडेंट को असाइन करना होगा तो क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को टैग करेंगे, आइदर वो उसको टैग करेंगे या फिर लाइक उसको पर्सनली टेक्स्ट करेंगे। तो उसी तरीके से आईडी वाला चीज यहाँ पे काम करता है कि अगर आपको CSS सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पे लगाना हो, किसी एक एलिमेंट पे जिसको आपकी मर्जी है, तो आप वहां पे आईडी लगा करके उसको टारगेट करोगे। और अगर बहुत सारी जगह पे लगाना होगा तो आप क्लास से करोगे, ठीक है। तो क्लास जो टर्म हो जाता है वो जनरल टर्म हो जाता है और आईडी यूनिक टर्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है यहां तक? अगर फास्ट जा रहा होगा तो भी आप बताना कि हाँ सर फास्ट जा रहा, तो उसको थोड़ा स्लो डाउन करके चलेंगे हम लोग। कोई डाउट है इसमें, इस क्लास और आईडी में, तो आप बताओ।
इसके यूजेस जब हम लोग करेंगे ना, लाइक बनाएंगे, CSS वगैरह अटैच करेंगे, तब चीज हो जाएगा। देखिए डिफरेंशिएट ये है ना कि लाइक क्लास और आईडी में, कि क्लास आप तभी यूज करोगे ना जब लाइक कॉमन चीजें होंगी। जैसे आप H1 टैग है, ठीक है, H1 टैग आप 5 जगह वेबसाइट पे यूज कर रहे हो, उस पर आपको सपोज फॉन्ट साइज 15 पिक्सल रखना था और कलर रेड रखना था, ठीक है। और दूसरा कहानी ये है कि किसी एक जगह ना आपको रेड के बजाय ग्रीन रखना था उसका कलर। तो आप क्या करोगे कि एक क्लास डिफाइन करोगे और उस क्लास नेम को आप सारे HTML टैग में डाल दोगे H1 वाले में, ठीक है। उससे क्या होगा, सारा का कलर रेड हो गया। अब आपको जिसको ग्रीन करना है ना, उसको कैसे टारगेट करोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि एक यूनिक आईडी उस पर्टिकुलर टैग में डालोगे और उस आईडी के बेसिस पे आप उसको ग्रीन करोगे। इसका जब आप एग्जांपल देखोगे ना लाइव, तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। मैं वहां पे भी ये चीज रिपीट कर दूंगा। सुनील, आप कुछ टाइप कर रहे थे, आपको कोई डाउट है? ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम जंप करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा एट्रीब्यूट। ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम तब यूज करते हैं ना जब हमें क्या करना होता है कि एक किसी एलिमेंट से डेटा पास करना होता है। और ये मोस्टली आपका तब यूज में आएगा जब आप जावास्क्रिप्ट में मोस्टली काम कर रहे होगे, ठीक है। क्या होता है कि जब भी बिना फॉर्म सबमिट किए, आप ध्यान से सुनना मेरे टर्म को, बिना फॉर्म सबमिट किए हुए आपको कोई डेटा पास करना है, ठीक है। जनरली क्या करते हैं, जब भी कहीं पे डेटा हमको भेजना होता है तो हम फॉर्म यूज कर लेते हैं, फॉर्म यूज करते हैं, वहां से चला गया, ठीक है। अब सपोज आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो और आपका एक शॉपिंग कार्ट वाला फंक्शनलिटी है, ठीक है। वहां पे आपको जो भी बंदा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट वाला बटन पे क्लिक कर रहा है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाए, ठीक है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे हमें क्या चाहिए होगा कि जो हम प्रोडक्ट रखते हैं डेटाबेस में उसका एक यूनिक आईडी होता है हर एक प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अब उस प्रोडक्ट का आईडी अगर मिल जाए, अगर आप उसको स्टोर कर पाओ और उसी के बेसिस पे आप उसके कार्ट में सारे डिटेल्स दिखा पाओ, तो आपको क्या चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट आईडी, राइट। तो अब आईडी आपको मिलेगा कैसे, समझ रहे हो मेरा कहना क्या है। तो वहां पे आप इधर दो ऑप्शन बचता है आपके पास, या तो आप ऐड टू कार्ट वाला जो बटन है उसको हिडन वे में फॉर्म बना दो, ठीक है, कि फॉर्म जब सबमिट होगा, बटन क्लिक होने पे फॉर्म सबमिट हो जाए, तो सबमिट होगा तो जो फॉर्म में डेटा है, वैल्यू है, वो आपके पास आ जाएगा। दूसरा कंडीशन आपके पास ये बचेगा कि आप वहां पे डेटा एट्रीब्यूट यूज कर लोगे और डेटा एट्रीब्यूट में आप पास कर दोगे आईडी को, ठीक है। तो डेटा एट्रीब्यूट जो यूज होता है ना, वो हमेशा डेटा डैश फिर वेरिएबल नेम होता है। जैसे आपका वेरिएबल नेम आईडी है तो डेटा डैश आईडी पास करोगे। अगर आपका वेरिएबल नेम सबमिटेड है, जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो डेटा डैश सबमिटेड है, उसका देखिए वैल्यू क्या पास किया, यस। इसी में आपको आईडी पास करने हो तो क्या करोगे, डेटा डैश आईडी, और यहाँ पे जो भी आईडी होगा उस प्रोडक्ट का वो पास कर दोगे। अब जावास्क्रिप्ट में आप क्या करोगे, जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ तो आप इवेंट मॉनिटर करोगे कि ये बटन अगर क्लिक हो तो आगे एक्शन क्या करना है, ठीक है। वो कंसेक्यूटिव एक्शन में आप क्या करोगे कि आप उसको कैच करोगे और उस पर्टिकुलर एलिमेंट से डेटा एट्रीब्यूट में से जो वेरिएबल आप पास किए हो आईडी करके, वो आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लोगे। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी डेटा एट्रीब्यूट पास करना होता है वो डेटा डैश देन वेरिएबल नेम और फिर उसके बाद इक्वल टू में उसका वैल्यू पास करना होता है। अभी फिलहाल आप इतना ही याद रखो, ठीक है। डेटा एट्रीब्यूट कैसे पास करेंगे, तो डेटा डैश देन वेरिएबल नेम, उसके बाद उसके वैल्यू में इक्वल टू, और जो उस वेरिएबल नेम का आप वैल्यू पास करना चाहते हो वो वैल्यू आप पास करोगे, ठीक है। तो डेटा एट्रीब्यूट इस तरीके से हम पास करते हैं। जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होंगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। या फिर इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे और वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ सर आपने जो बताया था डेटा एट्रीब्यूट वो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अभी वो चीज दिखाऊंगा ना तो आपको आपके लिए लाइक ऐसा हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ सर, कैसे हुआ, ठीक है। तो अभी जस्ट आपको ये याद रखना है। वो क्लास क्या है सर, क्लास तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे आपको लाइक एग्जांपल बता था ना, क्लास क्या होता है, आपका रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो भी आपको CSS डालना है या जावास्क्रिप्ट पे काम करना है तो किसी का आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए होगा ना। जैसे आपको मैं भेजूं किसी सोसाइटी में कि आप कुरियर डिलीवर करके आओ और आपको एड्रेस ना दूं, तो क्या आप डिलीवर कर दोगे सही इंसान के पास, नहीं ना। तो उसी तरीके से आप CSS लगाओगे, ठीक है, बट किसके लिए,
ये तो पता होना चाहिए, राइट। तो आप कैसे टारगेट करोगे? तो उस टारगेट करने के लिए क्लास नेम पास किया जाता है। तो क्लास यहाँ पे जस्ट दिया हुआ एक टैग जिसमें क्लास नेम भी यूज हुआ पड़ा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे उसका कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है हरिओम? या डाउट है तो आप लाइक कंफर्म करो, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जंप करते हैं, और वो है हमारा लाइक लिंकिंग रिसोर्सेज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें जो है ये सारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जो आपके लिंक टैग के अंदर यूज होते हैं। लिंक टैग एक होता है जिसके थ्रू हम लिंक करते हैं चीज़ों को। जैसे बताया था ना कि हेड वाला जो टैग था हमारा, उसके अंदर सारा लिंकिंग और मेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो हेड टैग के अंदर ये लिंकिंग होता है। ठीक है, तो हेड टैग के अंदर जो ये होगा लिंकिंग, तो लिंकिंग का भी हर टैग का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो लिंक टैग का ये सारे एट्रीब्यूट है। कैरसेट, इससे ये पता चलता है कि आप जो लाइक डॉक्यूमेंट में को अटैच कर रहे हो उसका कैरेक्टर इनकोडिंग क्या है। फिर क्रॉस ऑरिजिन, इससे ये पता चलता है कि लाइक क्रॉस ऑरिजिन रिक्वेस्ट अलाउड है या नहीं है। अब क्रॉस ऑरिजिन किसको बोलते हैं? तो क्रॉस ऑरिजिन में क्या होता है ना कि दो तरीके का रिक्वेस्ट होता है, एक होता है HTTP, दूसरा होता है HTTPS। ठीक है, तो अगर कोई रिक्वेस्ट HTTP से HTTPS के लिए कर रहा है तो वो अलाउ करना है आपको या नहीं करना है, समझ रहे हो? क्योंकि सिक्योर्ड वाला जो पार्ट होता है, अब कोई अनसिक्योर मेथड से आपको रिक्वेस्ट डाल रहा था, आपको उस चीज को अलाउ करना है नहीं करना है, वो पैरामीटर आप यहाँ पे पास करते हो। ठीक है, अब तीसरा एट्रीब्यूट है HREF। ये मेन है, और इसी में जिस लोकेशन से आप कनेक्ट कर रहे हो ना, या जिस डॉक्यूमेंट को आप कनेक्ट कर रहे हो उसका URL या रिलेटिव URL यहाँ पे पास करना होता है। ठीक है, HREF लैंग ये ऑप्शनल होता है, इससे ये आप बताते हो कि किस तरीके का डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो। ठीक है, फिर मीडिया है, उससे आप बताते हो कि किस तरीके का लाइक ये डिस्प्ले किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो सारा चीज इसमें पास करोगे आप। REL जो है वो बताता है रिलेशन रिक्वायर्ड क्या है या नहीं है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड क्यों होता है? इससे ये आपको पता चलता है कि डॉक्यूमेंट का रिलेशनशिप क्या है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हो। जैसे आप CSS करोगे कनेक्ट, तो आप वहाँ पे रिलेशन में पास करोगे कि ये स्टाइल शीट है। ठीक है, जिससे ब्राउजर को ये समझ में आएगा कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट कनेक्ट किया गया है इसका रिलेशन स्टाइलिंग से है। ठीक है, अगर आप जावास्क्रिप्ट सपोज कनेक्ट करते हो तो उसका रिलेशन में आप डालोगे कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, बट जनरली जावास्क्रिप्ट को लिंक टैग से हम नहीं कनेक्ट करते हैं, उसके लिए स्पेशल टैग स्क्रिप्ट टैग है। ठीक है, तो रिलेशन वाला चीज ये बताता है कि किस तरीके का रिलेशन करंट डॉक्यूमेंट और जो आप डॉक्यूमेंट को लिंक कर रहे हो उसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, फिर आती है REV। इससे बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन लिंक्ड डॉक्यूमेंट एंड करंट डॉक्यूमेंट, लाइक दोनों का काम सेम है। उसी तरीके से साइजेज, साइजेज में क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जिसमें आप पास करोगे ना कि ये आइकन है, तो ये साइजेज वाला चीज जो है उसमें काम करेगा। और ये जो चीज है ना साइज वाला चीज, ये जनरली हम तब यूज करते हैं जो ब्राउजर के ऊपर, आपको याद है एक मैंने कल बताया था टाइटल टैग में कि आप जो कुछ भी दिखाते हो उसका टाइटल आता है और उसके साथ साथ एक लोगो आता है। फिर से मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखो ये टाइटल है, इसके बगल में एक लोगो है, ये लोगो का क्या साइज होगा, ठीक है, ये वाला चीज आप साइजेज वाला एट्रीब्यूट से सेट करोगे। ठीक है, फिर आती बारी टारगेट। टारगेट में है लाइक कि लिंक डॉक्यूमेंट जो लोड कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कहाँ पे लोड करना है, लाइक इसी पेज पे या फिर नए टैब में लोड करना है। जैसे आपका लिंकिंग वाला चीज काम कर रहा था, हाइपरलिंक और एंकर, वो वाला चीज। फिर है टाइप। टाइप ये बताता कि किस तरीके का मीडिया टाइप आप कनेक्ट कर रहे हो। फिर है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में आप ये बताते हो कि किस तरीके का इनकोडिंग आप कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इतने एडवांस में लाइक आपको चीजें दिखेंगी नहीं, ये सारा एट्रीब्यूट्स जो है जब आप CDN कनेक्ट करोगे ना किसी अदर रिसोर्स का, ठीक है, जैसे बूटस्ट्रैप का या फिर jQuery का, ठीक है, तो वो सारे CDNs में आपको ये सारे एट्रीब्यूट दिखेंगे। ठीक है, या फिर जब आप अपना खुद का CDN बनाओगे तो ये सारे चीजें आपको वहां पे मेंशन करना होता है, जब आप अपना CDN वेबसाइट से कनेक्ट करोगे तब। ठीक है, ये थ्योरी का पार्ट है, इसको ज्यादा उतना लाइक टेंशन लेने वाला चीज नहीं है। आप यूज करोगे ना तो जैसे जैसे आप यूज करोगे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, अभी जब हम कनेक्ट करेंगे CSS को अपने वेबसाइट के साथ, तो आपको इसमें से कुछ कुछ पैरामीटर जो है वो यूज में आएगा और वो चीज आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है? या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
क्रॉस ओरिजिन में क्या होता है हरिओम, कि क्रॉस ओरिजिन जनरली लाइक दो ओरिजिन, मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पे रिसोर्स है, ठीक है। अब कहानी यह है कि हमेशा वेबसाइट पे क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है रिक्वेस्ट, दूसरा होता है रेस्पॉन्स, राइट। तो सपोज किसी ऐसा रिसोर्स से आपके पास रिक्वेस्ट आ रहा है जो सपोज करो HTTP प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप एक CDN प्रोवाइडर हो, लाइक आप डिलीवरी नेटवर्क पे हो और आपके पास HTTP से रिक्वेस्ट आ रहा है, बट आप जो सर्विंग, आपका जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS है। अब क्या हुआ, एक क्रॉस हो गया ना, वो दोनों सेम ओरिजिन से तो नहीं है, एक का HTTP है, दूसरा का HTTPS है, ठीक है। और या ये भी हो सकता है कि HTTPS से रिक्वेस्ट HTTP जा रहा हो, तो सिक्योर्ड वाले से अनसिक्योर पे जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। ये वही कहानी हो गया कि अगर भिखारी भीख लेने जा रहा है किसी के पास, तब तक तो ठीक है। अगर कंडीशन उल्टा हो जाए कि जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं वो भिखारी से भीख मांगने जाए, तो दिक्कत वाली बात है ना, तो वही चीज हो जाता है, ठीक है। तो आपको वही चीजें ध्यान में रखना है कि सिक्योर चैनल पे अनसिक्योर से रिक्वेस्ट ना आए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वायरस अटैक हो, ठीक है, या कोई हैकर आप पे अटैक कर रहा हो। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको ये चीज़ सेट करना पड़ता है पैरामीटर सिक्योरिटी रीजन के लिए, कि क्रॉस ओरिजिन आप अलाउ करते हो या नहीं करते हो। जनरली अलाउड नहीं होता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है, क्लियर है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कहानी कि जावास्क्रिप्ट कैसे कनेक्ट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करने के लिए आपको यूज होता है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। इसमें दो तरीके का कनेक्शन होता है। तो एक होता है सिंक्रोनस, जिसमें क्या होगा कि लाइक आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे, ये पूरा पेज पहले लोड होगा तब चीज़ें इंटरेक्टिव होंगी, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्टली सोर्स पास करते हो, जो भी इसमें रिलेटिव यूआरएल या तो एब्सोल्यूट यूआरएल, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है, वो चीज़ हो गया। दूसरा होता है एसिंक्रोनस कॉल। इसमें क्या होता है ना एसिंक्रोनस में, कि लाइक आपका पेज फास्ट लोड करने के लिए पहले जो कुछ भी जल्दी जल्दी आ रहा होगा वो सारी चीज़ें लोड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको लाइक स्क्रीनशॉट लेने का नीड नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लासरूम में प्रोवाइड कर दी गई हैं, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री रहो। तो एसिंक्रोनस कॉल में क्या होगा कि लाइक आपको पेज इनिशियलाइज हो जाएगा, आपका सारा पेज लोड होते रहेगा रिसोर्सेज। ये चीज लोड हो भी या नहीं हो, ये फाइल का सारा कोड आपके पास लाइक क्लाइंट के पास पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पेज आपका लोड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इंटरनेट कनेक्शन सही होगा ये सारी चीजें भी लोड होकर के अप्लाई हो जाएगा। तो लाइक ये इंटरेक्टिव होने के प्रोसेस में इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज हो जाता है एसिंक में, क्लियर है। ये आपका पेज लोड को स्पीड अप कर देगा, ठीक है। इसके बाद आपको दो चीजें और ध्यान में रखनी होंगी, एक होता है डेफर करके, ठीक है, और लास्ट होता है नो स्क्रिप्ट करके। बहुत सारा ब्राउजर क्या होता है, बहुत सारे यूजर क्या करता है, अपना ब्राउजर पे ना जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके रखता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट अगर डिसेबल करके रखेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा कि आपने जो कुछ भी जावास्क्रिप्ट लगाया होगा आपके साइड से, तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो तो रन नहीं करेगा। और आपके वेबसाइट पे आपने सपोज आपने जो कोड लिखा उसमें जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज है, तो आप कैसे बताओगे यूजर को कि भाई तू अपना जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर ले पहले, ठीक है, तो मेरा वेबसाइट अच्छे से दिखेगा तुझे। तो ये चीज़ बताने के लिए आप क्या करते हो कि आप नो स्क्रिप्ट एक टैग होता है वो आप यूज करते हो। और इससे क्या होता है कि जो कुछ ये स्क्रिप्ट तभी रन करेगा ना जब जावास्क्रिप्ट डिसेबल होगा, ठीक है। जब जावास्क्रिप्ट इनेबल होगा तो ये इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा नो स्क्रिप्ट का, ठीक है। अब डेफर्ड वाले पे आते हैं। तो डेफर्ड वाला जो है ना वो एसिंक की तरह ही है, बस एक्सेप्शन इसमें ये है ना कि इसका पार्सिंग जो है, ये स्क्रिप्ट जो भी जिसको आप कनेक्ट करा, ये तभी परफॉर्म करेगा जब HTML फुल्ली लोड हो चुका होगा, ठीक है। पहले HTML पूरा लोड हो गया होगा, उसके बाद ही ये पार्स करेगा, ठीक है। ये हमेशा गारंटी देगा आपको कि लाइक जो भी सिंक्रोनस कॉल आप कर रहे हो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका सपोज कुछ कुछ कोड जो है वो यूज में था और आपने एसिंक्रोनस कॉल लगा दिया, उसमें क्या होगा कि लाइक जो भी एक्टिविटी आपकी होनी थी वो नहीं होगा। वो तब होगा जब लाइक सब पहले HTML पूरा लोड हो गया, उसके बाद बीच में हो सकता है वो स्क्रिप्ट रन कर जाए और HTML आपका लोड नहीं हुआ था सपोज। तो दिक्कत क्या होगा कि जिस HTML टैग के ऊपर आपने लाइक टारगेट करके स्क्रिप्ट लगाया था वो स्क्रिप्ट पहले रन कर गया, HTML कोड अभी बाकी है आना, तो क्या होगा वो कंडीशन तो फेल कर गया,
ठीक है, क्योंकि उसको टारगेट एलिमेंट तो मिला नहीं। तो डेफर हम तब यूज करते थे। डेफर यूज करने से फायदा ये हो जाता ना कि ये एसिंक्रोनस कॉल ही होगा, बस कंडीशन ये रहेगा कि पहले पूरा एचटीएमएल को लोड होने देगा, तब जाके ये सारा स्क्रिप्ट रन होना स्टार्ट करेगा। जबकि कायदे से यही होना चाहिए वर्किंग में कि पहले सीएसएस लोड हो तब एचटीएमएल लोड हो। ठीक है, कि एचटीएमएल जब लोड हो रहा होगा तो जो भी क्लास नेम या आईडी से टारगेट किया गया होगा डिजाइनिंग, वो डिजाइन उस पर अप्लाई होते जाए। फिर लास्ट में जावास्क्रिप्ट अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो टारगेट कर करके आप चीजों पे अप्लाई करोगे। जब आप यूज करोगे ना जावास्क्रिप्ट को, तो आपको समझ में आएगा कि आप आईडी पे या तो क्लास नेम को टारगेट कर करके या तो एलिमेंट को डायरेक्टली टारगेट करके आप उस पर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये सारा चीज होगा। तो जब एचटीएमएल टैग ही लोड नहीं होगा और उस पर आप अप्लाई करने बैठोगे तो आपको तो गाली दे देगा कि ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट। तो आपका स्क्रिप्ट तो फेल कर जाएगा। तो इसीलिए डेफर वाला पार्ट ज्यादा प्रीफर किया जाता है जहां भी बड़े फाइल साइज होते हैं। ठीक है, क्लियर है? हेलो, ठीक है। अब आगे जो बारी आती है वो आती है कि लिंकिंग रिसोर्सेज में एक्सटर्नल सीएसएस स्टाइल शीट। मैंने बार बार लाइक आपको जिक्र करा कि सीएसएस कनेक्ट करते हैं लिंक टैग के थ्रू, बट कैसे? तो वो हेड टैग में ना आप देखो यहाँ पे डाला हुआ लिंक, और आपको शुरू में मैंने एट्रीब्यूट सारे पढ़ाए थे, तो याद है रिलेशन में बताया था कि ये बताता है कि डॉक्यूमेंट और करंट डॉक्यूमेंट और जिसको आप कनेक्ट करें उसके बीच में रिलेशन क्या है। तो क्या बता रहा है यहाँ पे स्टाइल शीट। इससे क्या समझ में आएगा ब्राउजर को कि इस पर्टिकुलर पेज जिसको कनेक्ट किया जा रहा है एचआरईएफ वाले पार्ट से, जिसका आप यहाँ पे यूआरएल या फिर रिलेटिव पाथ दोगे, वो चीज को जो कनेक्ट कर रहे हैं उसका उसमें जो कोड है वो स्टाइल शीट का है। तो क्या करेगा, उसको सीएसएस में अप्लाई कर देगा। टाइप में बताता है कि किस तरीके का लाइक इसमें फंक्शनिंग यूज हुआ। तो टाइप क्या है, उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर पेज पे वो है टेक्स्ट और वो सीएसएस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिंक करते हो। तो ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, उसके पहले दो चीज और सीख लो। एक है फाइव आइकन। फाइव आइकन कब यूज होता है कि बहुत सारे बार आपने देखा होगा कि जब आप वेबसाइट पे होते हो फोन में बेसिकली, ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप इसको होम पे ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे आप ट्रिपल डॉट पे क्लिक करते हो, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करना फोन में, ठीक है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप इसको होम पे शॉर्टकट ऐड करो। ठीक है, तो जैसे ही आप शॉर्टकट ऐड करते हो तो आप देखोगे कि एक ऐप जैसे आपका जनरली फोन में होता है उसी तरीके से वो लोड होता है। ठीक है, और उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि लोगो के साथ वो दिखेगा। ठीक है ना, उसका लोगो दिखेगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट का और उसका नेम रहेगा। तो ये फैब आइकन से वही लोगो यहां से डाला जाता है कि कौन सा लोगो उस जगह को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए फैब आइकन कनेक्ट करते हैं। अब आती बारी जो आपको बताया था टैब के ऊपर। जब भी आप कोई टैब ओपन करते हो अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, तो वहां पे आपको टाइटल के साथ साथ एक आइकन दिखता है। तो वो आइकन जो है आपका मीडिया एट्रीब्यूट के साथ कनेक्ट कर किया जाता है। और एक ये भी कंडीशन होता है कि बहुत सारे वेबसाइट आपको प्रिंटिंग का फीचर देती है, राइट। जब आप क्लिक करते हो तो आपको प्रिंट का ऑप्शन देता है कि आप प्रिंट कर लो ये चीज को। और सपोज कोई अपना लैपटॉप से प्रिंटर कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। अब प्रिंटर के अलग अलग सेटिंग्स हो सकते हैं। आप सपोज रेसिप्ट प्रिंट करवा रहे हो, आपने एक ऐसा बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया जिसका क्या कनेक्शन है कि आपने अपने कस्टमर को सेल करा, कस्टमर आपका वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। ठीक है, अब उसने उसे बिल प्रिंट करना है। अब सपोज आपने स्टाइलिंग सही से नहीं करा, प्रिंटिंग के लिए स्पेशल स्टाइलिंग नहीं करा, तो क्या होगा, वेबसाइट का जो आपका डायमेंशन होता है वो तो लैपटॉप के साइज का है ना, बट प्रिंटर क्या उस ढंग का पेज एक्सेप्ट करता है? आप जब भी आप किसी भी स्टोर पे जाते हो, बिग बाजार हो गया या फिर स्मार्ट बाजार जो अभी कन्वर्ट हो गया रिसेंटली, या और भी स्टोर पैंटालून्स है, अजियो है, आपको बिलिंग जो बेसिकली मिलता है एक पतला सा स्ट्रिप पे मिलता है, राइट। तो वो पतला सा स्ट्रिप पे कंटेंट आपका फिट हो कैसे? आप तो स्क्रीन पे बड़ा सा दिखाते हो, बट उस स्ट्रिप पे चीजें फिट हो जाए और प्रिंट हो, इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको अलग से स्टाइलिंग करनी पड़ेगी सीएसएस। तो वो सारा स्टाइलिंग कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आपको मीडिया में पास करना होगा प्रिंट। तो ये इससे क्या होगा ना कि प्रिंटिंग जब इनेबल होगा तभी जाकर के वो सीएसएस अप्लाई होगा, अदरवाइज वो सीएसएस अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।
ठीक है ना। तो एक छोटा छोटा चीज समझो कि लाइक कैसे यूजफुल होगा, ये सारी चीजें ना आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब छोटा छोटा ट्रिक है, टिप्स एंड ट्रिक है, जिससे आप एक आप में और एक लाइक लो जूनियर डेवलपर में डिफरेंस इसी से पता चलेगा। ठीक है, कि आपको कितने बेसिक बेसिक चीजें आपको पता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप जाओगे प्रिंटिंग में, सपोज आपने ये चीज नहीं कनेक्ट करा, तो क्या होगा प्रॉब्लम, कि प्रिंट करने बैठोगे, प्रिंटिंग में सही से सेट होकर के नहीं आ रहा, आधा प्रिंट हो रहा, आधा मिस हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा डेवलपर का तो ये काम नहीं होगा ना, कि आधा प्रिंट करे आधा मिस कर जाए, राइट। तो आपको अच्छा डेवलपर तभी माना जाएगा जब आप एक एक चीज को कनेक्ट सही से बारीक तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे, उसके हर एक एस्पेक्ट्स को सोचोगे, उसके अकॉर्डिंग आप सारे डिजाइन्स बनाओगे, डेवलप करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट कोड इन एचटीएमएल। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे एचटीएमएल में डाला जाता है। तो पहला तरीका यह है कि लाइक आप डायरेक्टली बॉडी टैग जहां पे क्लोज हो रहा होगा ना, उसके जस्ट ऊपर आपको लिखना होता है, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट उस पर्टिकुलर पेज पे अप्लाई हो जाएगा, और नो स्क्रिप्ट में आप जो भी लिखोगे वो जब जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड रहेगा तो वो मैसेज आ जाएगा। अब कहानी है दूसरा कंडीशन कि अगर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिंक करना हो, वो ऑलरेडी आपको बताया, उसी तरीके से स्क्रिप्ट टैग एसआरसी में आप रिलेटिव पाथ या तो एब्सोल्यूट यूआरएल डाल दो, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब है कि डायरेक्टली इंक्लूड करना है, तो बॉडी टैग जहां से क्लोज हो रहा होगा जिसके जस्ट ऊपर डाल दो। एसिंक्रोनस कॉल में डालना है तो एसिंक करके लगा दो कनेक्शन। ठीक है, और इसमें भी आप टाइप पास कर सकते हो, जिससे ये पता चलेगा कि किस तरीके का फाइल आप कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो था कि लाइक कैसे आप कनेक्ट करोगे। अब यूजिंग एचटीएमएल विद सीएसएस के पहले हमने अभी तक जो भी कनेक्शन वाला चीज करा ना, उसको पहले कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चीजें करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने index.html फाइल बनाया होगा, उस पे जाओ और html टाइप करो और इंटर प्रेस करना, जिससे ये बन जाएगा। ठीक है, इतना बनाओ पहले और फिर मैसेज करो कि आपका हुआ या नहीं हुआ। जिनका भी होते जाए आप चैट में लिखते जाओ या फिर लाइक गिव अ थम्स अप। एनीवन जिनका कंप्लीट हुआ हो। ऑल राइट, ठीक है, टाइटल में आप लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट डालना और फिर वेट करना। ठीक है, चलो अब पहला चीज कनेक्ट करते हैं, वो है लाइक हम कनेक्ट करेंगे सीएसएस वाला पार्ट। ठीक है, तो सीएसएस के लिए क्या करेंगे, पहले एक नया फाइल बनाएंगे। तो डे टू फोल्डर में जाओ, एक क्रिएट राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे जाना और कंट्रोल प्लस एस, और इसका नाम रखेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, एक्सटेंशन क्या रखना, डॉट सी एस एस। ठीक है, ये रखा और इसको कनेक्ट करते हैं। तो टाइटल के जस्ट नीचे आपको लिंक करके एट्रीब्यूट पास करना, और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आपको रिलेशन में स्टाइल सीट आ जाएगा, टाइप में टेक्स्ट स्लैश सीएसएस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल देना, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर हो आप, राइट। तो जस्ट यहाँ पे आप लिखोगे स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब इसको टेस्ट करेंगे कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये लिंक टैग हो जाए देन आप मुझे टेक्स्ट करो, या फिर लाइक आप थम्स अप शो करो, रिएक्ट करो, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी का हुआ यहाँ तक, जस्ट लिंक टैग आप टाइप करते रहना, आपको ऑप्शन सजेशन मिलेगा, तो जस्ट आप इंटर प्रेस कर देना, देन आपके सारे चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है, उसमें जस्ट आपको फिर स्टाइल डॉट सी एस एस कनेक्ट करना है।
ठीक है। इतना करने के बाद आप एक H1 टैग क्रिएट करो और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखो। ठीक है। अब टेस्ट करना है हमें कि अपना CSS कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको बताया कि इसमें आप CSS लिखने के लिए तीन तरीके का चीजें आप जनरली यूज करोगे। आइदर आप डायरेक्टली एलिमेंट पे टैग कर दो। H1 में सपोज मैंने करा कि कलर इसका रेड हो जाए। ठीक है, ये एक टारगेट करने का तरीका हुआ। तो अभी जो हम हमारा आउटकम आना चाहिए ना, फिर इस पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करना। ओपन होगा तो देख आपको जो आउटपुट आना चाहिए ना, वो आपका रेड कलर का H1 टैग होना चाहिए। ठीक है, देखो आ गया। अब अगर सपोज मैं इसमें स्टाइल डॉट सी एस एस में रेड के जगह पे ग्रीन करता हूं, तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। और अगर कलर चेंज होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो फाइल CSS का है वो कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर। देखो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने जो CSS फाइल कनेक्ट करा वो सही से काम कर रहा है। राइट, हम तो CSS में चेंज कर रहे हैं ना फाइल पे, और यहाँ से चेंजेस वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है index.html वाले कोड पे। राइट, तो हमारा ये जो स्क्रिप्ट करने का जो तरीका था, ये हमारा सही से काम कर रहा है। ऑलराइट, ये चीज हो जाए फिर हम लाइक थम्स अप करो। किसी का हुआ? रेड करने के बाद ये CSS लिखने के बाद आपको index.html फाइल में आना है। ठीक है, और उस पर जा करके राइट क्लिक करके आपको ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करना है। याद रखिएगा कि फॉरगेट नहीं करना आपको, कि लाइक पता चला कि आपने सेव नहीं करा फाइल और डायरेक्टली आप ओपन कर रहे हो ब्राउजर में तो एरर आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि पहले फाइल सेव करने हैं, तब आपको जाकर के पेज रिफ्रेश करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद दो चीज आपको आज मैंने सिखाया, क्लास और आईडी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और क्लास में मैं पास कर रहा हूँ HSR करके। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि HSR वाला जो पार्ट है, ठीक है, क्लास नेम में डॉट से कनेक्ट करते हैं क्लास नेम को। ठीक है, अब इसमें मैं CSS क्या अप्लाई कर रहा हूँ कि इसमें बॉर्डर बॉटम जो है, ठीक है, इसमें बॉर्डर 2px सॉलिड ग्रीन कलर का बॉर्डर आ जाए। ठीक है, ये मैंने CSS कनेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ क्लास को टारगेट करके। तो अब आपको समझ में आएगा कि क्लास क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये सही से कनेक्ट हुआ होगा और क्लास नेम वगैरह सही से काम कर रहा होगा, तो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड के चारों साइड ना 2 पिक्सल मोटा लाइक थिक एक बॉर्डर आ जाएगा ग्रीन कलर का। देखो आ गया। तो हमारा क्लास वाला जो चीज था वो भी हम सक्सेसफुली अप्लाई कर पाए। अब आती बारी कि इस पे एक आईडी भी पास करते हैं। ठीक है, और आईडी का नाम रखते हैं HSR। ठीक है, और सेव करा हमने। और आईडी वाले पार्ट पे, तो आईडी को कनेक्ट करना तो कैसे, हैशटैग देन आईडी, आईडी HSR रखा है हमने। अब देखो क्लास नेम भी हमारा सेम है, आईडी भी सेम है। ये चीज आप कर सकते हो, बट किसी और एलिमेंट में अब फिर से आईडी आप HSR नहीं रख सकते। यही है यूनिक वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पैडिंग ऐड कर रहा हूँ। पैडिंग से क्या होता है ना, जैसे आप बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि इंटरनल मार्जिन जो होता है, ठीक है, अंदर की ओर, ठीक है ना, गैप दे करके बहुत सारे घर बनता है, क्या होता है, पहले वो बाउंड्री करते हैं, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, फिर बीच में अपना बिल्डिंग बनाते हैं। तो जो अपने बाउंड्री के अंदर जो स्पेस छोड़ा ना, उसी को बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, उसी तरीके का सेम चीज आप अप्लाई करते हो वेबसाइट पे, उसी को पैडिंग हम बोलते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे 10 पिक्सल रखा, तो अब क्या होगा ना कि आप देखोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि पैडिंग में क्या हुआ कि ये अभी सटा सटा है बॉर्डर, राइट, एच के पास। अब देखो कि ऊपर से डिस्टेंस इतना ही रहेगा, ऊपर का जो मार्जिन है वो उतना ही रहेगा, बट अंदर की ओर हेलो और बॉर्डर के बीच में ना स्पेस आ जाएगा। थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे हैं, देखो ऊपर का मार्जिन उतना ही है, लेफ्ट साइड से मार्जिन उतना ही है, राइट साइड से मार्जिन उतना ही है, बस क्या हुआ, अंदर की ओर इसका थोड़ा सा स्पेस ऐड हो गया। राइट, तो ये CSS हमने अप्लाई करा आईडी को टारगेट करते हुए। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि आईडी यूनिक क्यों रखना चाहिए। ठीक है, अब सपोज मैं किसी और H3 बनाता हूं एक, कैसे हो आप करके। ठीक है, और इसमें भी ना लाइक मैं सेम आईडी रखता हूं जो ऊपर वाले एलिमेंट को दिया।
अब क्या होना चाहिए, पैडिंग आना चाहिए, राइट। आपके अकॉर्डिंग तो पैडिंग आना चाहिए। देखते हैं, देखो इसमें भी चीजें, जो भी चीजें आईडी की थी वो हो गया, ठीक है ना। तो यूनिक वाला पार्ट पे क्या होता है कि जैसे ही आप यूनिक से अलग जाओगे ना, तो जब आप टारगेट करने बैठोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, जो आपको दिखाता हूं। अब कहानी है कि जावास्क्रिप्ट कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करते हैं, और जो आईडी वाला इफेक्ट है ना, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि क्यों यूनिक आईडी रखनी चाहिए। अब स्क्रिप्ट वाले में देखो, जैसे ही मैंने टाइप करके एंटर प्रेस करा, ये देखो टाइप में टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट डाल दिया। अब इसके अंदर ये हो गया, जो हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे ना, कमेंट एक ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा इंटरनल जावास्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, आप यहीं पे लिख रहे हो, कोई एक्सटर्नल पेज पे नहीं है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट जो है इसी तरीके से यूज किया जाता है। स्क्रिप्ट टैग, उसके अंदर आप जो कुछ भी लिखते जाओगे वो अप्लाई होते जाएगा। अब है जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ना, होता है डॉक्यूमेंट, जिससे क्या होता है, ये पूरा डॉक्यूमेंट को लाइक पूरा सोर्स कोड को ये कैप्चर करेगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी करके एक पैरामीटर होता है, जिसमें आप आईडी पास करते हो ना, ठीक है। डॉट ऑन, लाइक इसमें जो HTML है, मैं चाह रहा हूं कि इसका HTML चेंज करके मैं कर दूं हेलो, ठीक है। मेरी मर्जी ये है कि जो कंटेंट पहले से लिखा हुआ है उसको मैं चेंज करके हेलो कर दूं, ठीक है, इसके हेल्प से। अब देखो मैं रिफ्रेश करने जाऊंगा, किसी का चेंज हुआ नहीं हुआ, ये फेल कर गया, राइट। ये स्क्रिप्ट फेल कर रहा है। और जैसे ही आप इसका आईडी डिफरेंट कर दोगे ना, अब एक सिंगल आईडी बचा, अब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये देखो कैसे वो आप है, हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके करा था, और इसमें डॉट HTML वाला पार्ट jQuery हमने कनेक्ट नहीं करा, इसलिए ये चीज काम नहीं करा। जैसे ही हम jQuery का CDN कनेक्ट करेंगे, ये चीज काम कर जाएगा, ठीक है। तो आपको jQuery का CDN कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, आप जाओगे गूगल करोगे jQuery CDN, ठीक है। इसमें आप जा करके क्लिक करना, और आपको राइट यहाँ पे मिनिफाइड वाला वर्जन आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं चैट में आपको ये कॉपी पेस्ट करके दे रहा हूँ, आप सेम चीजें कॉपी पेस्ट कर लो अपने स्क्रिप्ट में भी, ठीक है। तो अब हम ये जो है एक्सटर्नल अब कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कमेंट में ऐड कर दे रहा हूं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, राइट। ये हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि ये अदर सोर्स से स्क्रिप्ट आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे हमें पेस्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारा पेस्ट हो गया। अब इसमें जो सेलेक्टर होता है jQuery में, वो आप डायरेक्टली डॉलर करके एक सिंबल होता है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको jQuery इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, आईडी वाला पार्ट समझाने के लिए ये चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट में लिखूंगा ना, उससे आप डायरेक्टली बस करना, उसको समझने का ट्राई, नहीं भी समझ में आया तो चलेगा, आपको नेक्स्ट क्लासेज में वो सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट आपको आईडी वाला चीज डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे यूनिक आईडी वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो ये एक सेलेक्टर है जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और रिफ्रेश करोगे तो ये वाला पार्ट पे देखो, हेलो वर्ल्ड में क्या हुआ, वर्ल्ड हट गया, हेलो आ गया। क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा कि बोला कि आईडी HSR से सेलेक्ट करो, और उसमें जो टेक्स्ट है ना उसको चेंज कर दो हेलो से। ये हमारा स्क्रिप्ट था, ठीक है। ये चीज हमने क्वेरी करा, ठीक है, jQuery की हेल्प से। अब कहानी ये है कि आईडी अगर दोनों का सेम होता, ठीक है, अब दो आईडी मैंने सेम कर दिया, ठीक है ना। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, देखो देख रहे हो, कंफ्यूज हो रहा चीजें, ठीक है। दोनों का आईडी सेम होने पे कभी आएगा कभी जाएगा, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। वही क्लास नेम अगर सेम रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लास में रख दूं HSR, और यहाँ पे क्लास नेम अगर दे दूं कि लाइक क्लास नेम ढूंढ करके चेंज करो, तो ये कंफ्यूज नहीं होगा, ये दोनों जगह हेलो कर देगा बिंदास। देखो कर दिया हेलो, राइट। और CSS जो लगे हुए थे वो भी अप्लाई हो गए इस पे। तो इस तरीके से आपका काम करता है। तो आईडी हमेशा यूनिक रखना, और आईडी में क्या होगा ना कहानी, कि जो ऊपर रहेगा ना सबसे पहले मिल जाएगा, उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका कहानी मैं बनाऊं कि 3 एलिमेंट आपका एक ही आईडी का रख देता हूं, ठीक है। सपोज H1 के ऊपर मैं एक पैराग्राफ डाल दे रहा हूं, और पैराग्राफ का आईडी ना सेम रख रहा हूं HSR, इससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैंने रखा था टेस्ट,
और टेस्ट वाला कंटेंट आप देखोगे कि जो टेस्ट वाला कंटेंट है ना वो चेंज होगा, ना कि आपका H1 वाला। पिछले बार में क्या हुआ था, H1 वाला कंटेंट चेंज हुआ था और पैराग्राफ वाला नहीं। ठीक है, अब देखो हेलो किसका चेंज हुआ, पैराग्राफ का। तो जावास्क्रिप्ट जो ढूंढना स्टार्ट करता है ना वो ऊपर से स्टार्ट करता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो ऊपर से नीचे में आ रहा है तो सबसे पहले आईडी क्या मिल गया, पैराग्राफ का HSR, वो वहीं पे रुक गया। अब आपका मान लो सपोज था मन कि हेलो वर्ल्ड को हेलो करना था और ये तो आपका टेस्ट को हेलो कर बैठा, राइट। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको आएगा जब आप यूनिक आईडी नहीं रखोगे तब। ठीक है, तो यूनिक आईडी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? हेलो, अगर कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन, कोई तो रेस्पॉन्स कर। ठीक है, एक नया फाइल हम बना रहे हैं लोकल में। ठीक है, अभी तो क्या करा कि jQuery दूसरे का कनेक्ट करा, अब हम अपने प्रोजेक्ट का कोई जावास्क्रिप्ट फाइल कनेक्ट करना होगा तो कैसे कनेक्ट करेंगे उसको सीखते हैं। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख रहा हूं index.js। जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन होता है वो JS होता है। ठीक है, अब index.js यहाँ पे है, अब हमें कनेक्ट करना है इसको, तो क्या करेंगे, ठीक है, मैं कमेंट ऐड कर रहा हूं एंड देन फिर आगे ऐड करेंगे। ठीक है, लोकल स्पेस से ऐड करें तो सेम स्क्रिप्ट टैग यूज होगा, जस्ट हमारा यूआरएल अलग रहेगा, राइट, सोर्स अलग रहेगा। तो हमने स्क्रिप्ट टैग बनाया, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करा, टाइप में हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट हो जाएगा। और सोर्स में यहाँ पे लाइक सोर्स आपको यूज करना होता है और सोर्स में जो है आप चेंजेस करोगे तो सोर्स में आपका यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल आ जाएगा और रिलेटिव यूआरएल में क्या है, index.js। अब कहोगे सर ये काम कर रहा नहीं कर रहा कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हम index.js में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे console.log। ठीक है, console.log में जो कुछ भी हम लिखते हैं ना वो आपका कंसोल करके एक सेक्शन होता है, जब आप इंस्पेक्ट करोगे वेबसाइट को वहां पे ये चीज आएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये चीज काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैंने क्या बताया, कंसोल कैसे चेक करेंगे, तो आप ब्राउजर पे जाओ, ठीक है, इसको रिफ्रेश करो और राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे जाना, इंस्पेक्ट पे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको कंसोल का। ठीक है, और अगर आप वहां पे देखोगे तो वहां पे मैं आ गया करके एक स्क्रिप्ट आ चुका होगा, मतलब जो लॉग होना था वो लॉग आउटपुट में आ चुका होगा। जैसे आप पाइथन में प्रिंट यूज करते हो, सी में प्रिंटफ यूज करते हो, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में console.log यूज करते हैं। ठीक है, और आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा हो कि एक ऊपर में ना पॉपअप टाइप आता ओके करने के लिए। ठीक है, तो उस तरीके का चीज मैं अगर डालना हो तो मैंने अगर डाल दिया सपोज अलर्ट मैं आ गया। ठीक है, और ये कब काम करेगा, जब पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लाइक HTML आपका लोड हो जाएगा ना, उसके बाद देखो पूरा HTML लोड हो गया। ठीक है, अभी बीच में हमने कनेक्ट करा था, अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे तो ये जो पेज हमने कनेक्ट करा है वो क्या है, jQuery है, उसके बाद बीच में ये स्क्रिप्ट है, राइट, जहाँ पे पेज index.js कनेक्ट करा, और जो चेंज करने वाला चीज था टेस्ट को हेलो में, वो स्क्रिप्ट अभी रन होगा नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट देख रहे हो कैसे रन कर रहा, पहले ऊपर वाला फिर उसके जस्ट नीचे, अब नीचे वाला रन करेगा। ठीक है, तो ये है आपका रनिंग प्रोसेस। देखो अभी तक टेस्ट है, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे ना तो ये टेस्ट फटाक से हेलो में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना, ओके पे क्लिक करा, हेलो में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ कि पहले बीच वाला स्क्रिप्ट रन किया, ये वाला चीज, ये रन होने के बाद आपका ये चीज हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जावास्क्रिप्ट काम करेगा एग्जीक्यूशन में। ठीक है, तो सपोज आपको 4 फंक्शन कॉल करने हैं, पहले पहला फंक्शन, फिर दूसरा फंक्शन, फिर तीसरा फंक्शन, फिर चौथा फंक्शन, तो आप कैसे रखोगे, तो सबसे ऊपर जिसको रखोगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो, एनीवन, शांतनु, सुनील, मनीषा, आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर कुछ कंफ्यूजन या सर के ऊपर जा रहा है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
आप डायरेक्टली लिख सकते हो चैट में, क्योंकि मैं डाउट पूछूंगा, कल का भी डाउट की है मुझे, मैं आज लास्ट में वो सारे डाउट्स पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। अब भाग मत जाना। ओके, क्या रिपीट करना शांतनु, कौन सा पार्ट पे? क्या रिपीट करना, वही मैं पूछ रहा हूँ, लाइक किस वाले पार्ट पे समझ में नहीं आया? आईडी यूनिक क्यों रखना है वो समझ में आ गया, या फिर वो भी समझ में नहीं आया? ओके, जावास्क्रिप्ट रन कैसे करता है, राइट। चलो ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट में क्या हुआ ना कि पहले एचटीएमएल वाला चीज लोड हो जाता है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की सारी चीजें रन होना स्टार्ट होती है, ठीक है, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है। अब कहानी ये है कि स्क्रिप्ट में हमने यहाँ पे जे एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कनेक्ट करा, तो देखो इसमें सोर्स है, राइट। सोर्स में वो फाइल लोकेशन है जहाँ पे ये फाइल है। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी में जो बताया था ना इनकोडिंग डाला जाता है, किस तरीके का इनकोडिंग है, बेस 64 एंड ऑल वो चीज़। क्रॉस ऑरिजिन में एनोनिमस है, मतलब कि सब अलाउड है, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स करके कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हमें कनेक्ट करना था लोकल जावास्क्रिप्ट फाइल, क्योंकि जब आप काम करोगे किसी वेबसाइट पे तो आपका लोकल जावास्क्रिप्ट फाइल भी होगा, ठीक है। उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए जस्ट स्क्रिप्ट टैग ही यूज करेंगे, टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट रखेंगे और सोर्स में आप रिलेटिव यूआरएल डालोगे। तो हमारा रिलेटिव यूआरएल डायरेक्ट फाइल नेम था, तो हमने फाइल नेम डाला, ठीक है, index.js। अब है कहानी ये कि उसके नीचे हमने एक स्क्रिप्ट लिखा था जिसमें हम आईडी को लाइक आईडी के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं टैग को, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है ना उसको चेंज कर रहे हैं हेलो में, ठीक है। अब कहानी यह है कि हमने जो इंडेक्स वाला जेएस जो कनेक्ट करा उस पर दो चीजें करा है, एक कि लॉग करा कंसोल में कि मैं आ गया, और दूसरा जो फंक्शनिंग डाला है वो डाला है कि अलर्ट एक शो करो, पॉपअप एक लेकर के आओ और उसमें बताओ मैं आ गया। अब देखो, जब आप पेज रिफ्रेश करोगे हमेशा तो इसमें दो चीजें होंगी, यहाँ पे देखो टेस्ट पहले से है, ठीक है, उसको आप सबसे नीचे जो आप स्क्रिप्ट रखा है आपने उसमें से अपने आईडी से उसको फाइंड आउट कर रहे हो, फिर उसको रिप्लेस कर रहे हो कि वहां पे हेलो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप देखो, तो यहाँ पे पहले आपका जो चीज़ है, मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करके रखूं और आपको चीज़ें दिखाऊं एक एक करके, तो यहाँ पे देखो मैं आ गया वाला जो चीज़ आ रहा है उसके पहले कंसोल यहाँ पे लोड कर दे रहा हूँ। रिफ्रेश करा पेज, अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे पहले कंसोल हो गया, मैं आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट पहले रन हुआ, ये एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट हुआ है तो पॉपअप आया, और जैसे ही मैं पॉपअप का कंफर्मेशन दूंगा तो ये फाइल में तो अब कुछ नहीं है, तो ये सारा स्क्रिप्ट खत्म हो गया। अब ये खत्म होने के बाद क्या होगा, ये वाला पार्ट रन करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही ये रन होगा तो एचएसआर जो आईडी है उसके वाले पार्ट को हेलो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे होगा कि ये जैसे ही ओके पे क्लिक करा, अब देखो ये हेलो में कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसको मैं हटा दूं तो ये देखो टेक्स्ट टेस्ट से हेलो में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। तो जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। कोई भी स्टेप इसमें लाइक जंप नहीं करता है, तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था। अगर क्लियर है तो आप मैसेज करो। रिकॉर्डेड वीडियो एक बार देखना, ठीक है ना, और जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि यूजिंग HTML विद CSS। अब CSS कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप एक्सटर्नल CSS लगाओ, जो हमने करके आपको दिखाया। हमने क्या करा था, यहाँ पे एक एक्सटर्नल CSS लिंक टैग से कनेक्ट करा और फिर उसका स्टाइलिंग करके हमने देखा, और वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे एक्सटर्नल CSS। अब आती बारी इंटरनल CSS का, कि इंटरनली CSS हम कैसे लिखेंगे। तो इंटरनल CSS आपको हेड टैग के अंदर लिखना होता है, और वो लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ता है स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल टैग में टाइप टाइप बताओगे टेक्स्ट स्लैश CSS है, और इसके अंदर आप सारे चीजें लिखोगे। सपोज हमने एक स्पैन टैग लिया, ठीक है, इसमें लिखा था हाउ आर यू, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क था, और इसका सपोज हमने आईडी रखा test1, ठीक है, ये आईडी रखा। अब यहाँ पे मैं इंटरनल CSS लिख रहा हूँ। इंटरनल CSS कहाँ लिखते हैं, हेड टैग के अंदर
स्टाइल टैग क्रिएट करके। ठीक है, तो CSS में आईडी से कनेक्ट करने के लिए हैशटैग यूज करते हैं, तो हैशटैग फिर लिखा test-1। इससे हम टारगेट कर पाएंगे किसको, स्पैन टैग को, क्योंकि इसका आईडी test-1 है। इसको टारगेट करने के बाद हमने करा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो। फॉन्ट साइज से क्या होता है, जो टेक्स्ट का साइज है ना वो बड़ा होगा। इसको हमने कर दिया 50px कर दो। ठीक है, साथ ही साथ कलर जो है वो इसका रखना लाइक पिंक। ठीक है, हॉट पिंक करके हमने कलर इसका सेट करा। अब देखते हैं कि इंटरनल CSS जो है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो क्या था, आपने लाइक डाले हो हाउ आर यू, और हाउ आर यू पे देखो आ गया हॉट पिंक कलर में। तो जो हमने इंटरनल CSS लगाया वो यूज हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप इंटरनल CSS यूज कर सकते हो। तो इंटरनल CSS कहाँ पे यूज होगा, तो हेड टैग के अंदर आप एक स्टाइल टैग बनाओगे और उसके अंदर आप सारे इंटरनल CSS लिखोगे। जो चीज आप एक्सटर्नल CSS में लिखते हो ना, उसी चीज को आप यहाँ पे इंटरनल CSS में लिख सकते हो। क्लियर है। जब भी मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूँ ना, तो आप लोग साथ में टाइप करते रहो, सो दैट कि आपका ना थोड़ा टाइम बचे। ठीक है, चलिए, आई गेस सबको क्लियर है, किसी ने डाउट नहीं पूछा तो मैं उससे समझ रहा हूँ कि क्लियर है। वैसे आप प्रैक्टिस करो ना कि आप कुछ ना कुछ लाइक रिएक्ट करते रहो, सो दैट कि मुझे समझ में इंटरेक्टिव हो सेशन, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए, एक जो चीज़ है वो है इनलाइन स्टाइल। ठीक है, कि इनलाइन CSS कैसे डालते हैं। ठीक है, तो इनलाइन CSS के लिए क्या होता है ना, कि आप डायरेक्टली इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। क्या बोलते हैं, इंटरनल। स्टाइल वाले के अंदर जो लिखोगे वो इंटरनल CSS। जो स्टाइल शीट आपने कनेक्ट करा style.css, ये हो गया एक्सटर्नल CSS। अब इंटरनल CSS की बारी है। इंटरनल CSS कैसे होता है जो दिखाता हूं। सपोज h4 करके एक टैग हमने बनाया। ठीक है, और इसमें लिखा कि जस्ट अ टेस्ट। ठीक ठीक है, ये चीज हमने लिखा और क्या कर रहे हैं हम, इस पे इंटरनल CSS लगाएंगे। तो इंटरनल CSS के लिए क्या करना होता है, आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है स्टाइल बोल करके। ठीक है, और जैसे आप लाइक स्टाइल CSS में लिखते हो सेम चीजें आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, जैसे मुझे इसका चेंज करना है कलर, तो कलर में जैसे आप वहाँ पे पास करते थे ना, उसी तरीके से अब मुझे रखना है कलर का नेम। सपोज क्या रखा जाए, कोई सजेस्ट करो, कुछ भी कलर नेम। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक होगा। ठीक है, तो वो चीज मत बताना, उसके अलावा कुछ बताओ। फॉन्ट साइज जब तब तक मैं डाल दे रहा हूँ। किसी को कोई आइडिया नहीं है, कुछ तो कोई सजेस्ट करो, किसी का तो कुछ फेवरेट कलर होगा। चलो, कोई नहीं सजेस्ट करे तो मैं ब्लू कर दे रहा हूँ, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू देखो, ये उस तरीके से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा सुनील। ठीक है, कुछ प्री डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट लाइक रिटेन है, वो उस तरीके का आप इनपुट डाल सकते हो, जैसे ब्लू मैंने डाला। ठीक है, तो अब स्क्रिप्ट वाला चीज जो लगा हुआ है वो चीज देखो आ गया यहाँ पे, ओके। एंड देन देखो जस्ट अ टेक्स्ट आ गया, जस्ट अ टेस्ट। यहाँ पे हमारी चीजें आ गई। तो इंटरनल CSS कैसे लिखेंगे, तो आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करोगे और उसी के अंदर सारा CSS आप लिखते जाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनल CSS का। अब है कहानी कि मल्टीपल CSS फाइल कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल स्टाइल शीट यूज हो सकता है ना एक वेब पेज पे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टाइल शीट से काम चल जाएगा। तो कुछ खास नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया एक और यहाँ पे नाम सपोज रख दिया mobile.css। ठीक है, और एक फाइल बना देते हैं mobile.css, और उसमें कुछ कुछ चीज़ें स्टाइलिंग का लिख देते हैं, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि हाँ वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो लाइक कुछ भी ऐसा ही कर दिया होगा, पता नहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। तो हमने मोबाइल CSS, ये यूनिवर्सल CSS हम लिख रहे हैं, लाइक जो बॉडी टैग है ना पूरा उस पर लगा रहे हैं कि मार्जिन जो है 25px रख दो। इससे क्या हुआ देखना कि आउटसाइड जो मार्जिन है ना पूरा का पूरा सब पे 25px का मार्जिन मिल गया। देखो ये भी चिपका चिपका हुआ है, देखना ये चारों साइड से मार्जिन पे आ जाएगा। देखो 25px का मार्जिन आ गया, लेफ्ट से देखो ऊपर से भी मार्जिन मिल गया। तो इस तरीके का आप CSS आपका मल्टीपल पेजेस कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है हमारा इमेजेस, कि इमेज कैसे सेट करेंगे। इमेज में आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। पहला है एसआरसी, जिससे आप लाइक फाइल का लोकेशन बताते हो कहाँ पे फाइल है। ये एब्सोल्यूट यूआरएल भी हो सकता है, रिलेटिव यूआरएल भी हो सकता है। दूसरा है एसआरसी सेट। एसआरसी सेट इसलिए यूज होता है ना कि लाइक आपका बहुत सारा डिवाइस होता है ना, किसी का हाई रेजोल्यूशन डिवाइस है, किसी का लो रेजोल्यूशन है, किसी का मोबाइल है, किसी का टैबलेट है, तो लाइक हर किसी पे आप सेम इमेज लोड करने जाओगे तो वो सही नहीं होता है, ठीक है, वो गलत इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसआरसी सेट। एसआरसी सेट से क्या होता है कि आपका अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे आप इमेजेस यूज करोगे वो चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आता है आपका साइजेज। साइजेज से आप बता सकते हो कि लाइक इमेज के बीच में ब्रेक पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है, दो इमेज अगर यूज हो रहा है तो उसके ब्रेक पॉइंट्स क्या होंगे, वो चीज़। फिर है क्रॉस ऑरिजिन, लाइक कि क्रॉस ऑरिजिन रिक्वेस्ट या अलाउ करेगा नहीं अलाउ करेगा। फिर है यूज मैप, लाइक अगर इमेज में मैप यूज हो रहा तो करना है नहीं करना। इज मैप, लाइक इमेज जो है सर्वर साइड से मैपिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। अल्ट, अल्ट में हम डालते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालना कंपलसरी होता है। ये क्यों, जो बता रहा हूँ। इससे क्या होता है ना कि अगर सपोज किसी कारण बस, ठीक है, आइदर वो इंटरनेट इशू हो या फाइल में कुछ गड़बड़ी हुआ या कोई भी रीजन हुआ जिसके कारण आपका इमेज लोड नहीं हो पाया वेबसाइट पे, तो वहां पे ना टेक्स्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा कि हाँ ये इमेज तो लोड नहीं हुआ बट ये किस चीज का इमेज है वो पता चल जाएगा। फिर आती है विड्थ और हाइट, लाइक कि इमेज का विड्थ क्या होगा, इमेज का हाइट क्या होगा, ये चीजें आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अब है कि इमेज डालेंगे कैसे, इतना चीज तो सर आपने बता दिया एट्रीब्यूट। और जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना, 6 प्रोजेक्ट है उसमें सारे में ये सारा एट्रीब्यूट हम कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इमेज डालेंगे कैसे सर, तो इमेज डालने के लिए जैसे आपको कल दिखाया था गूगल का इमेज डाल करके, सेम उसी तरीके से IMG टैग एसआरसी में आप पास करोगे यूआरएल को और वहां पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट में डालोगे कि इमेज के बारे में, लाइक किस चीज का इमेज है वो चीज, ठीक है। तो ये चीज आपका इमेज डालने के लिए होता। अब आती बारी एसआरसी सेट में कि लाइक एसआरसी सेट जो है कहानी कि कैसे लाइक अलग अलग डिवाइस पे कैसे रेंडर होगा। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे आपको अलग अलग यूआरएल्स डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप लोकली पहले उस तरीके का फाइल क्रिएट करते हो, आप अलग अलग रेजोल्यूशन पे इमेज क्रिएट करते हो, उसको सेव करते हो और उसी चीज को आप यहाँ पे सारे इमेज का जो आपका रिलेटिव यूआरएल है वो डालते हो, प्लस किस ब्रेक पॉइंट पे तोड़ना है, लाइक किस बिट पे कौन सा चीज दिखेगा वो चीज भी आप डालते हो। जैसे ये डाला हुआ है इमेज स्लैश हेलो 300.jpg, ये डाला हुआ है कि 300 बिट्स रहेगा ना मोबाइल स्क्रीन का बिट तो ये इमेज आएगा। अगर 600 बिट तक है, 300 to 600 के बीच में, तो ये इमेज उठ करके आएगा। 600 से 900 के बीच में है तो ये उठ कर, सॉरी 300 के ऊपर 600 तक 300 वाला आएगा, 600 से 900 वाले के बीच में 600 वाला आएगा, 900 से 1200 के बीच में 900 वाला आएगा, 1200 से ऊपर 1200 वाला आएगा, और बाय डिफॉल्ट ये वाला चीज आएगी, ठीक है। तो एसआरसी सेट इस तरीके से आप आराम से सेट करोगे। उसके ये बेसिकली आपका रेस्पॉन्सिव में हेल्प करता है। रेस्पॉन्सिव में क्या करते हो कि आपका वेबसाइट हर एक डिवाइस पे रेंडर करे प्रॉपरली, ठीक है। तो प्रॉपर रेंडर करने के लिए क्या होगा कि लाइक इमेज अलग अलग साइज का होगा तभी तो काम कर पाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से चीजें डालते हो, ठीक है। और साइजेज में आप ब्रेक पॉइंट देखो डाला हुआ है, मिनिमम बिट्स 1200 पिक्सल है, फिर 580 पिक्सल है, मिनिमम बिट 640 पिक्सल है, तो आपको 48 VW 98 VW, लाइक कहाँ कहाँ पे आप तोड़ रहे हो ना। एसआरसी सेट में जो जो वैल्यूज आप पास करोगे उस तरीके से आप ये सारी चीज़ें डालते हो। जैसे 1200 बिट पे करा था तो 1200 बिट किया हुआ, 900 100 पे तो 900 का डालोगे, 98 वाला जो चीज़ है, 600 पे 640 वाला डाला हुआ है, 300 पे 48 वाला 580 वाला डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप ब्रेक पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। ब्रेक पॉइंट्स वाला चीज़ जब आपको रेस्पॉन्सिव CSS बनाएंगे हम लोग तब अच्छे से समझाएंगे और वहीं पे एसआरसी सेट का भी यूज करेंगे। अभी फिलहाल इमेज कैसे डालते हैं वो चीज़ देखते हैं और उसके बाद फिर आगे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। रेस्पॉन्सिव इमेज का एक और तरीका है, वो है पिक्चर टैग। एक होता है पिक्चर एलिमेंट, आप यूज कर लो और उसके अंदर आप ये सोर्स मीडिया जो है ये चीज़ें आप प्रोवाइड करते जाओ, उसके बेसिस पे इमेज लोड होते जाएगा। जैसे अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्या है, सोर्स क्या है, मिनिमम बिट 600 px होगा तो एसआरसी सेट में ये चीज़ आ जाएगा। सोर्स अगर 400 पिक्सल का मिनिमम बिट है तो ये चीज़ आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट में ये जो यूआरएल यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ वो इमेज आ जाएगा। तो रेस्पॉन्सिव वाला पार्ट जो है ये बेसिकली इसलिए डाला जाता है जहाँ पे आपका
हर पर्टिकुलर यूजर का अलग अलग स्क्रीन होगा ना, आप नहीं डिसाइड कर सकते बैठे बैठे कि लाइक कितने तरीके का डिवाइस लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट सैमसंग एक कंपनी है, उसके अलग अलग रेजोल्यूशन के फोन आते हैं, राइट। लैपटॉप का अलग अलग वेरिएंट है, किसी का 13 इंच का स्क्रीन होगा, किसी का 16 इंच का स्क्रीन होगा, किसी का 15.6 वाला स्क्रीन होगा, किसी का 17 होगा, कोई मॉनिटर यूज कर रहा होगा तो उसका 27 है, किसी का 32 है, राइट। तो आपका वेबसाइट हर एक स्क्रीन पे सही से फिट बैठे, उसके लिए आपको रेस्पॉन्सिव वाला पार्ट पे काम करना होता है, ठीक है। और उसके लिए ये सारा चीज यूज में आता है। जब आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे हम लोग, जैसे ही HTML CSS खत्म होगा और हमारा बूटस्ट्रैप खत्म कर लेंगे, तो आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवाएंगे और उसको हम लोग लाइव करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करेंगे और आपका जो वेबसाइट होगा वो रिस्पॉन्सिव होगा, कि अगर कोई यूज़र फ़ोन से खोल रहा है या लैपटॉप से खोल रहा है, टैबलेट से खोल रहा है, डजेंट मैटर, आपका वेबसाइट सही से रेंडर करेगा, ठीक है। तो उस जगह पे आपको ये सारे डिफरेंसेस समझ में आएंगे। फिलहाल आपको लाइक इमेज वाला जो चीज़ है, इमेज कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे कल वाले चीज़ में करा था वही चीज़, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एब्सोल्यूट यूआरएल का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो कमेंट ऐड करते हैं इमेजेस करके, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, IMG टैग सोर्स चाहिए होता है और अल्टरनेटिव टैग्स। तो सपोज यहाँ पे अल्टरनेटिव टैग्स में मैं रखता हूँ गूगल लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल लोगो हमें कनेक्ट करना है, तो जस्ट इंटरनेट पे जाइए, गूगल लोगो का यूआरएल लेकर के आइए और जस्ट कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो गूगल लोगो पे गया, इमेजेस में गया, और सपोज ये GIF में हमें कनेक्ट करना है, तो कॉपी इमेज एड्रेस राइट क्लिक से और ला करके इमेज एड्रेस पेस्ट कर दीजिए। मैं चैट में भी इमेज एड्रेस डाल दे रहा हूँ, ठीक है। बड़ा सा यूआरएल है, ठीक है, सबका अपना अपना CDN होता है, उसके अकॉर्डिंग ये इनकोडिंग होता है, ठीक है ना। तो ये इनकोडिंग है बेसिकली, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। तो ये बड़ा सा रिलेटिव यूआरएल है जो CDN सर्व कर रहा है, ये एक्चुअली बेस 64 कन्वर्जन है, ठीक है ना। तो जब आप रिफ्रेश करोगे तो आपका एक गूगल का लोगो आ चुका होगा, देखो आ गया। इसको अगर आपको लोकली सेव करना तो कुछ खास नहीं, जस्ट आप इस पे आओ, इसको सेव इमेज एज कर लो और .02 वाले फोल्डर में आप सेव कर लीजिए गूगल करके, ठीक है। अब google.png है तो मेरी मर्जी, अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ google.png, ठीक है। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, सेम आउटकम। बस ये होगा कि इसका फाइल साइज जो है ना बड़ा सा होगा, तो ये बहुत बड़ा फाइल जाएगा, देखो बहुत बड़ा बन गया इमेज लोड हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं लोड हुआ है, बस ये कहानी ना कि बड़ा सा लोड हुआ है, ठीक है। जिसको जैसे हाइट और बिड्थ वाला एट्रीब्यूट था वो हम पास कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइट में हम जैसे कल पास किए थे उसी तरीके से हाइट पास कर दे रहा हूँ 80, तो ये 80 px हाइट पे फिक्स हो जाएगा। अब देखो अच्छे से फिट बैठ जाएगा, आ गया। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे इमेज को, क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो पूछो। ओके, चलिए। इमेज मैप एक यूज होता है, ठीक है। ये एक्चुअली ना हम एक ड्राइंग टाइप का एरिया बनाते हैं और वो क्लिकेबल होता है, ठीक है ना। तो वो कैसे बनाते हैं वो चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि एक IMG टैग में आप पहले पास करोगे कि किस तरीके का शेप आप यूज करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद एरिया का लाइक किस तरीके का कोऑर्डिनेट पे आप बनाना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें वो आप पास करते हो। जैसे मुझे एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल बनाना, तो उस तरीके का मैं इनकोडिंग यूज करूंगा, ठीक है। मैं आपको सोर्स कोड दे दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके उसका आउटकम देख सकते हो, ठीक है। तो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इमेज सोर्स में देखो एक GIF कनेक्ट किया हुआ है जिसका हम यूज करके इमेज मैप क्रिएट करेंगे। और मैप में देखो तो मैप एट्रीब्यूट है, उसमें नेम पास किया गया शेप्स करके, क्योंकि हम शेप बनाने वाले हैं, तो शेप करके पास किया गया। और किस तरीके का कोऑर्डिनेट पे वो चीज़ ड्रॉ करेगा लाइन, उसका कोऑर्डिनेट्स देखो कॉर्ड्स करके उसका पैरामीटर्स एट्रीब्यूट में पास किया गया, ठीक है। तो ट्रायंगल, स्क्वायर और एक सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपको आना है और कॉपी पेस्ट करना। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ पहले, सो दैट कि आपको फाइल शेयर करूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम यूज करें क्या, इमेज मैप्स, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस में रखो कि लाइक कमेंट आप डालते जाओ कंटिन्यू। ये हमने GIF कनेक्ट करा, उसके बाद शेप्स में पॉलीगॉन लिया, और पॉलीगॉन में क्या है, ये हमने ट्रायंगल बनाया है, राइट। सॉरी, ये सर्कल, रेक्टेंगल और ये पॉलीगॉन वाला चीज़ है।
अब देखो इसका क्या आउटकम आता है, रिफ्रेश करोगे आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो आ गया। तो ये वाला पार्ट जो है आपके लिए क्लिकेबल एरिया ये बन जाता है। आप इस पर लाइक अप्लाई कर दोगे एंकर एलिमेंट, देन ये क्लिकेबल एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है या नहीं है, ये बताओ पहले आप। देखो ये इमेज मैप वाला जो चीज़ है ना, वो बेसिकली आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ये पहले यूज होता था जब लाइक आइकन्स नहीं थे अवेलेबल। अब बहुत सारे कंपनीज है जो आपको आइकन्स प्रोवाइड करती हैं, तो आपको इसकी नीड पड़ेगी नहीं। आप आराम से CDN कनेक्ट करोगे और वहाँ से इसका हेल्प ले लोगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट चीज़ जो है, आज का लास्ट टॉपिक वो कवर अप करते हैं, वो है इनपुट कंट्रोल एलिमेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप वेबसाइट पे आपने बहुत सारी जगह पे फॉर्म भरा होगा, बहुत सारे वेबसाइट पे फॉर्म वाला सेगमेंट देखा होगा, आपको लाइक बहुत एक्साइटमेंट होता होगा कि ये बनता कैसे, राइट? तो आज हम वो चीज़ सीखने वाले एक एक करके। ठीक है, तो पहला है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट इनपुट कैसे बनाते हैं? तो इनपुट वाले फील्ड के लिए ना लाइक एक नया फाइल क्रिएट कर लो, क्योंकि 20 इनपुट है ना, तो नए फाइल पे ये चीज़ करते हैं। ठीक है, तो सेव करना और यहाँ पे कर लेना इनपुट्स या input.html। ठीक है, और यहाँ पे HTML लिख करके सेव। एक एक करके मैं आपको इनपुट्स दिखाते जाता हूँ और ये फाइल भी आपको शेयर कर दूंगा। चलिए, तो इनपुट के लिए यूज होता है इनपुट टैग। ठीक है, इनपुट टैग में आपको टाइप पास करने होते हैं। टाइप किस तरीके का होगा? तो टाइप हमने पास करा यहाँ पे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट इनपुट बन जाएगा। और बाय डिफॉल्ट जो है इसका साइज जो है वो 20 होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं पास कर रहा हूँ और अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, ठीक है ना, राइट क्लिक करके, तो देखो एक इनपुट फील्ड बना हुआ होगा। ठीक है, बस इसका विड्थ जो है वो 20 तक ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें 100 पास करता हूँ साइज में, तो देखना कितना बड़ा इनपुट फील्ड बन जाएगा ये, देख रहे हो? तो साइजेस से आप इसका साइज बढ़ा सकते हो। नेम वाला जो पार्ट है ये बेसिकली यूज होता है बैकएंड पर्पस के लिए। बैकएंड पर्पस के लिए कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर फील्ड का, ये भी तो आपको डिसाइड करना होगा। जब आप डेटाबेस में सेव करोगे तो ऐसा तो नहीं करोगे ना कि ईमेल वाला वैल्यू आप किसी और में सेव कर रहे हो और नेम आपने लिया था इनपुट में, वो किसी और जगह से लोगे, तो वो चीज़ आप नहीं करते, राइट? उसके लिए अब इसमें एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर करके। प्लेस होल्डर में क्या होता है कि जो कुछ भी आप पास करोगे ना, वो चीज एज ए हिंट टेक्स्ट आपका इनपुट बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, एज ए हिंट टेक्स्ट, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीज का ध्यान रखिएगा, हिंट टेक्स्ट आता है। ठीक है, तो आपको रिप्लेस करो, देखो यहाँ पे क्या आ गया, इनपुट फील्ड के अंदर इंटर ईमेल लिख रहा है, और जैसे आप कुछ टाइप करोगे वो गायब हो जाएगा, तो वो हिंट टेक्स्ट है। ये प्लेस होल्डर में आप पास करते हो। ये हो गया हमारा क्या, टेक्स्ट इनपुट। अब आती बारी रेडियोज और चेकबॉक्स का। ठीक है, तो रेडियोज और चेकबॉक्स में कुछ खास नहीं करना, जस्ट आप इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, और टेक्स्ट के जगह पे इसको कर दो रेडियो। ठीक है, और रेडियो वाले में साइज आपका अलाउड नहीं होता, प्लेस होल्डर नाम का चीज नहीं होता है। ठीक है, तो इनपुट में आओगे और आप देखोगे तो रेडियो इनपुट बटन बन जाएगा। देखो यहाँ पे रेडियो इनपुट बटन बन गया। अब रेडियो इनपुट बटन जो है, अब ये हमेशा लेबल के साथ आता है। ठीक है, क्यों आता है लेबल के साथ? क्योंकि आपने देखा होगा रेडियो वाला इनपुट जो है आपका जनरली जेंडर फील्ड के लिए यूज होता है, राइट? मेल या फीमेल, ये दो ऑप्शन होते हैं और उसमें से कोई एक चूज करना होता है, राइट? तो उस कंडीशन पे हम लोग यूज करते हैं रेडियो का। कोई एक सेलेक्ट करवाना हो तो, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करवाना हो, जैसे आपका हो गया कि आप फॉर्म भर रहे हो किसी जॉब के लिए, तो आपके पास क्या क्या स्किल्स है वो आपसे सबमिट लेने हैं, तो वहां पे चेकबॉक्स देना पड़ेगा, राइट? ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे मैं लाइक 3 इनपुट फील्ड्स कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ रेडियो टाइप का। ठीक है, और इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट आप पास कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नेम है, नेम सेम रखने से क्या होगा कि आप नेम अगर डिफरेंट रखोगे ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप कितने भी इनपुट फील्ड क्लिक कर रहे हो वो क्लिकेबल होगा। अभी अगर कोई एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेम सेम रखोगे तो, अगर नेम मैं डिफरेंट कर दूंगा ना तो 2 या 3 क्या, सपोज इसका नेम मैं कलर 1 इसका कलर 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब सेव करके मैं रिफ्रेश करूंगा
तो आप देखोगे कि आप तीनों इनपुट को सेलेक्ट कर सकते हो। देखो इसको भी सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सेलेक्ट कर लिया। तो इसका जो बेसिक वर्किंग फंक्शनलिटी है वो है आपका नेमिंग। और मैंने क्या बताया था कि नेम से ही हम लोग बैकएंड में टारगेट करते हैं कि किस फील्ड का इनपुट क्या आया है। ठीक है, अब इसमें मुझे बताना कि ये मेल का है, ये फीमेल के लिए, ये अदर्स के लिए। तो क्या करूंगा, जस्ट इसमें यूज होगा लेबल। क्या यूज होगा, लेबल। और लेबल में आप आराम से पास कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप सपोज लेबल पास करना है तो क्या करोगे, LABEL लेबल, और लेबल क्लोज कहाँ होगा, इनपुट टैग के बाद। ठीक है, और इनपुट टैग खत्म होने के बाद आप लिखोगे लेबल में, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, मेल। उसी तरीके से इसके लिए लेबल लगाओगे तो लेबल में क्या लिखोगे, FEMALE फीमेल, और लेबल क्लोज करोगे। फिर यहाँ पे लेबल स्टार्ट करोगे और लास्ट वाले में क्या लिखने का मन था, अदर्स। हमने प्लान यही करा था, राइट। तो ये अदर्स लिखा इस तरीके से और ये लेबल क्लोज कर दिया। अब आप रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन के साथ साथ उसके हिंट भी मिल जाएंगे। किसके लिए, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए ऑप्ट कर सकते हो, या अदर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके का फॉर्म आप देखते हो ना, या अलग तरीके का देखते हो, राइट। तो इस तरीके का आपको चीज़ें देखने को मिलती है। अब आती बारी चेकबॉक्स का, तो चेकबॉक्स में भी सेम है। ठीक है, जस्ट आपको रेडियो वाला जो पार्ट है उसको आप चेंज कर दो चेकबॉक्स में। ठीक है, तो रेडियोज खत्म होगा, अब इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और रेडियो को हटा करके मैं चेकबॉक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, और इसमें अगर मैं दे दूं कि सब्जेक्ट आप चूज करो। ठीक है, ठीक है, तो लाइक इस चेकबॉक्स वाले पार्ट पे आपको सेम ऑप्शन है, आप रिप्लेस कर सकते हो लेबल को। अब देखो इसमें आप तीनों को टिक कर सकते हो। ठीक है, चेक मल्टीपल सेलेक्ट के लिए ये यूज करते हैं, तो ये वाला चीज़ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप आराम से चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आती बारी बटन्स के। तो बटन ग्रुप्स आपको बनाने हैं, तो आप आराम से इसके बटन के ग्रुप बना सकते हो। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करोगे, आप इजीली इसके ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हो। तो उसका मैं एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ, कोड आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, आप एक एक करके जस्ट इसको गो थ्रू करो, आपको टाइप करने का नीड नहीं, क्योंकि इसको टाइप करने बैठोगे ना बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके ग्रुप्स अगर मुझे बनाने हैं तो इस तरीके से हमने ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स में क्या है कि लाइक मुझे इनपुट लेने थे, तो देखो थीम कलर में रेड या ग्रीन कोई एक ऑप्ट कर सकते हो, इसमें से लाइक आप ब्लू चूज कर सकते हो। तो ये इस तरीके का तीनों में से कोई एक आप आराम से चूज कर सकते हो, तो ये ग्रुप बन गया आपका। ठीक है, और इसी को बोलते हैं लाइक ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके का ग्रुपिंग आपको देखने को मिलता है फॉर्म एलिमेंट में, राइट। तो फॉर्म ग्रुप इस तरीके का बनेगा। फिर आते हैं आपको इनपुट वैलिडेशन का। तो वैलिडेशन में क्या करते हैं, ठीक है, आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इनपुट वैलिडेशन के बाद आज का सेशन खत्म करेंगे। ठीक है, इनपुट वैलिडेशन में क्या होता है कि इनपुट वाला चीज़ जो हम इनपुट डाल रहे हैं उसको वैलिडेट कैसे करें कि ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो जैसे एक इनपुट फील्ड हमने बनाया था ऊपर में नेम टेक्स्ट वाला। ठीक है, अब अगर आपकी मर्जी है कि कोई यूजर नेम टाइप करे और वो लाइक मिनिमम लेंथ उसका 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से पास कर सकते हो, मीन 3 या फिर मिनिमम लेंथ करके एक पैरामीटर होता है वो आप पास करोगे 3, और मिनिमम लेंथ ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा। दूसरा चीज़ होता है रिक्वायर्ड, मतलब ये आप तब पास करते हो जब आपको ज़रूरत होता है कि लाइक ये फील्ड रिक्वायर्ड है। जैसे बहुत सारे फॉर्म आप देखते हो जहाँ पे बहुत सारे इनपुट फील्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप रिक्वायर्ड वाला पैरामीटर पास करते हो। ठीक है, उसी तरीके से आपकी चीज़ें आती हैं कि मैक्स लेंथ, जैसे आप मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हो तो मैक्सिमम इनपुट कितना होगा, इंडियन है तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा, राइट। तो मिनिमम लेंथ के जगह पे आप मैक्स लेंथ पास करोगे इज इक्वल टू 10, और मैक्स लेंथ आप वहां पे चेक करोगे। फिर आती है पैटर्न मेकिंग का, लाइक पैटर्न आपको चेक करना होगा कि सही इनपुट डाल रहा है नहीं डाल रहा। मोबाइल नंबर में ऐसा तो नहीं कर रहा ना कि लाइक वो बैठ करके कुछ और इनपुट डाल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती है आपका इनपुट वैलिडेशन में। ठीक है,
इसमें यहाँ तक में अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। ठीक है, आपको ये इनपुट वैलिडेशन वाला पार्ट कल फिर से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश। आई गेस आप लोग थक चुके हो, तो आज ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करेंगे। कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे इनपुट वाले पार्ट से और आपको एक एक करके चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब तक में कोई डाउट है तो बताओ। सब लैम्प टेक्स्ट पर हम HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही कर सकते हैं, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर सकते हो। वैसा कोई लाइक नेसेसरी नहीं कि यही कर सकते हो। फुल स्टैक डेवलपमेंट कंप्लीट सब लैम्प तक, यस हो सकता है, क्यों नहीं होगा। बस ये ना कि आपको लाइक जो एक होता है ना कि टाइम बचाने वाला, टाइम सेविंग चीज़ें, तो एक्सटेंशन इसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है। मैं लाइक विजुअल स्टूडियो कोड प्रीफर करता हूँ। उस पर बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं ना अवेलेबल, दैट्स वाई। ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज का सेशन यही एंड करते हैं, एंड आई वुड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। और आप लोग ना थोड़ा एनर्जेटिक में आओ, ठीक है, और थोड़ा इंटरेक्ट करो, लाइक इंटरेक्टिव सेशन रखो। इससे क्या होगा ना कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। ठीक है, और आप थकोगे नहीं। ठीक है ना? सो थोड़ा इंटरेक्टिव रखने का ट्राई करना, थोड़ा एनर्जी बचा करके रखना दिन से। ठीक है, आई नो कि हम लोग लाइक लेट नाइट क्लासेस कर रहे हैं, बट ये थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर के आओ, थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ, बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखोगे। ठीक है ना? थोड़ा डीपली मैं जा रहा हूँ चीज़ों पे, क्योंकि वो चीज़ तो, और कोई किसी को कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। मीनवाइल आई एम एंडिंग अप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, सो थैंक यू गाइज।